Hello everyone, welcome to my YouTube channel Management Education. So today I'm going to discuss the features of management, and which is related with my last video that was about the concept of management. So watch the video till the end. So today I'm going to discuss the features of management. I have taken the 7 features are like management is a goal-oriented process, management is all-pervasive or universal, management is multidimensional, management is a continuous process, management is a group activity, management is a dynamic function, and at last, management is an intangible force. So here I am going to discuss all the 7 features in this video. So let us discuss about the first feature of management, that is management is a goal-oriented process. So management. When there is goal, there is management. And when there is no goal, there is no management. So each and every organization have their own goals and objectives. And those goals and objectives are the reasons behind their existence. And their goals and objectives are different because it depends upon the nature and size of that particular organization. So here, what does the management actually do? सो मैनेजमेंट यहाँ पे क्या करता है? तो मैनेजमेंट यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं. इंटीग्रेट क्या करते हैं? ऑल द एफर्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स दोज हु आर वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. जो लोग उन ऑर्गेनाइजेशन पे काम करते हैं उनके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करते हैं और एक कॉमन डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं ताकि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल को अचीव कर पाए. सो हैंस फ्रॉम दिस वी कैन से दैट management is a goal-oriented process because it helps an organization to achieve its goal. The second feature of management is all pervasive or universal. So here we can add a line that is anything minus management is nothing. So I have added this line because this line means a lot, means that particular word which is called anything. Anything क्या है यहाँ पे? सो एनीथिंग यहाँ पे कॉमर्शियल नॉन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को मीन करता है. फिर एनीथिंग हियर लाइक स्मॉल मीडियम लार्ज, मतलब तीनों लेवल जो है, तीनों लेवल के जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ा हो छोटा हो मीडियम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो. फिर सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिलीजियस, इन तरीके का जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है हर वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. फिर हम लोग जितने भी स्कूल्स हॉस्पिटल्स देखते हैं, ऑफिस देखते हैं, इधर इन इंडिया यूएसए और रशिया, इन एवरीवेयर वी नीड मैनेजमेंट. सो इन सारी चीज़ों से अगर हम लोग मैनेजमेंट को डिडक्ट कर देते हैं देन एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज नथिंग. सो इफ वी डिडक्ट मैनेजमेंट देन वी विल गेट व्हाट, जीरो, फेलियर. सो इसीलिए हर वो ऑर्गेनाइजेशंस पे हमें क्या चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, so that we can run that particular organization smoothly, so that we can achieve the goal of that particular organization. And at the same time, in an organization we have the 3 levels like top level, middle level, lower level, and in this 3 level we need management equally. So we can conclude here that by considering all these facts we can say that management is all pervasive or universal because we have found that in every kind of activities, in every activities we need management. The next feature of management is multidimensional, and it is a complex activity comprising of 3 dimensions like management of work, management of people, and management of operations. The first one is management of work, and it is concerned with all the activities or works or jobs in an organization. एंड मैनेजमेंट यहाँ पे क्या करता है, मैनेजमेंट उन कामकाज जो एक ऑर्गेनाइजेशन पे होता है उनको कन्वर्ट करता है गोल में, और एक मतलब कैसे गोल को अचीव किया जाएगा वो तरीका निकल देता है. सो हियर यू सी मैनेजमेंट कन्वर्ट्स ऑल दोस एक्टिविटीज और वर्क्स इनटू गोल्स एंड क्रिएट्स अ वे टू अचीव देम. नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल. सो वी नो दैट मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. तो जितना ये लाइन आसान है बोलने में उतना ही मुश्किल है उसको प्रैक्टिकली करने में. तो क्योंकि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके बैकग्राउंड्स अलग होता है, उनके पर्सनैलिटीज अलग होता है, उनके नीड्स भी अलग होता है और उनके काम करने का तरीका भी अलग होता है. तो यहाँ पे मैनेजमेंट के लिए ये बहुत बड़ा टफ टास्क है.
तो यहाँ पे मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट प्रोवाइड एन इफेक्टिव लीडरशिप। मैनेजमेंट उनको मोटिवेशन करते हैं, स्ट्रॉन्ग मोटिवेट करते हैं। फिर मैनेजमेंट उनको एनकरेज करते हैं। देन मैनेजमेंट उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो ये सारे चीज़ जो है, ये सारे तरीका जो है मैनेजमेंट अपनाते हैं ताकि उन सारे एम्प्लॉयज के जो एफर्ट्स है उनको एक साथ इकट्ठा कर पाए, मीन्स इंटीग्रेट कर पाए, यूनाइट कर पाए, सो दैट दैट पर्टिकुलर मैनेजमेंट कैन प्रोवाइड ए कॉमन डायरेक्शन टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि मैनेजमेंट इस मल्टी डायमेंशनल में और एक डायमेंशन क्या है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। एक देखा हम लोगों ने मैनेजमेंट ऑफ वर्क, और यहाँ पे हम लोगों ने फिर से देखा कि मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो 2 डायमेंशंस हो गया। देन वी विल मूव टू द थर्ड वन, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। लास्ट डायमेंशन इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। सो हियर यू सी एवरी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अगर सर्वाइव करना चाहता है तो उनको कुछ प्रोडक्शन करना होगा। दे नीड टू प्रोड्यूस सम गुड्स एंड सर्विसेज। सो मतलब इनपुट्स को जो डिमांडिंग आउटपुट है उसमें कन्वर्ट करना होगा। तो दिस इज लाइक द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल, क्योंकि ये दोनों ही चाहिए। काम भी करना होगा, मैनेजमेंट ऑफ वर्क भी करना होगा और मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी करना होगा। क्योंकि मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, व्हाट इज टू बी डन एंड कौन करेगा, हु इज टू डू इट। सो यहाँ पे व्हाट इज टू बी डन मतलब मैनेजमेंट ऑफ वर्क का बात आ रहा है यहाँ पे, और हु इज टू डू इट मतलब यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो ये दोनों मिला के हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मीन्स ये मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन जब स्टार्ट होगा तब जाके एक प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा, और तब जाके जब एक हम लोग अगर एक गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर पाए तब जाके हम लोग किसी के डिमांड्स को फुलफिल कर पाएंगे, एंड एट दैट टाइम वी कैन सर्वाइव। So this is all about the management of operation. So here we have got the 3 dimensions of management, that is management of work, management of people and management of operations. So the next feature is management is a continuous process, or we can say that management is an ongoing process, because you see all the functions of management like planning, organizing, staffing, directing, controlling, so ये जितने भी functions हैं हमें on a regular basis perform करना होगा। और अगर कहीं पे भी हम लोगों ने ब्रेक ले लिया, मतलब इन फंक्शंस में ब्रेक ले लिया, तो क्या होगा, द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन विल बी फेलियर और कोलैप्स। क्योंकि हम लोगों को पहले ही मिल चुका था कि इफ यू डिडक्ट मैनेजमेंट फ्रॉम एनी एक्टिविटीज देन द रिजल्ट विल बी 0। तो कहीं पे भी अगर हम लोग ब्रेक लेते हैं, मैनेजमेंट अगर नहीं करते, मान लीजिए कहीं पे भी कोई भी काम ऐसे ही छोड़ गया है मैनेजमेंट का, then that organization will face a very dangerous situation। तो इसीलिए मैनेजमेंट क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि जितने दिन तक मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट रहेगा उतने दिन तक मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस है, जितने भी एक्टिविटीज है वो कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। सो फॉर दिस रीजन मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। द 5th फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। सो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी कैसा है, because you see in an organization we have different kinds of activities, like diverse activities करना पड़ता है। like मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन यूनिट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग है, सेल्स है, तो ये सारे चीज़ों के लिए हमें स्पेशलाइज लोगों को अपॉइंट करना होगा। तो हो गए एक डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। तो हमें इन लोगों को एक अच्छे टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन के साथ, कोऑपरेशन के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, हर एक इंडिविजुअल्स के एफर्ट को एक साथ कर सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, और उसके साथ ही उनके भी पर्सनल गोल्स को भी फुलफिल कर सकते हैं। सो हेंस फ्रॉम दिस context we can say that management is a group activity। means you see management have diverse activities, and we have means different individuals from different backgrounds। so we need to build a good teamwork चाहिए, एक अच्छा टीम एफर्ट चाहिए, और we need to build a good coordination among all the employees or all the individuals those who are working on that particular organization so that we can achieve the goal। तो इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, गोल को अचीव कर सकते हैं by working in a group। so here
एट लास्ट मीन्स ये सारे बातें जान के हम लोग ये तो आसानी से बोल सकते हैं कि हाँ मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। सो मैनेजमेंट क्यों एक डायनेमिक फंक्शन है? डायनामिक आखिर क्या है? डायनामिक मतलब कोई भी चेंजेस, मतलब मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन जो चेंज होता रहता है, जो कि चेंज कर सकते हैं। तो कोई भी चेंजेस हो तो मैनेजमेंट अपने प्लान्स पॉलिसीज को उसी चेंजेस के आधार पे खुद को चेंज कर लेता है, और जिसका फायदा एक ऑर्गेनाइजेशन को होता है। जैसे कि देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट, द बिजनेस एग्जिस्ट इन एन एनवायरनमेंट दैट इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। वो हमेशा चेंज होता रहता है। लोगों का टेस्ट प्रेफरेंसेस हो, लोगों का एक जगह का दूसरी जगह का जो लोगों का जो रहन सहन है, उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो मतलब डिफरेंट है हर एक जगह का। तो मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट उन चेंजेस के साथ खुद को चेंज कर लेता है। खुद के जो प्लान्स पॉलिसी स्ट्रेटेजीज है वो सारे चेंज कर लेता है, और ऑर्गेनाइजेशन को उन चेंजेस को एडॉप्ट करने के लिए हेल्प करता है। सो मैनेजमेंट is a dynamic function because you see management changes its plans, policies, strategies so that an organization can adopt the changes. So इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं? मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। जैसे कि देखिए KFC का अगर हम लोग मेन्यूज को कंसीडर करें वेस्टर्न कंट्रीज के, तो उनके उन देश में अलग है और हमारे देश में अलग है, क्योंकि हमारे देश का जो लोगों का टेस्ट प्रेफरेंसेस है तो उसी के हिसाब से उन लोगों को मार्केट करना होगा। तो इसी के हिसाब से उन लोगों ने क्या किया, अपने मेन्यूज को भी चेंज कर दिया। तो ये सारे चीज जो होता है, ये सारी चीज ओनली बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट। सो एज फॉर एग्जांपल यस, मारुति सुजुकी का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। आज देखिए कितने अपडेटेड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मारुति सुजुकी कंपनी के। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपनीज अभी इंडिया में आ चुके हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर पे, जो कि उनके बहुत ही अपडेटेड प्रोडक्ट्स है। तो उनके प्रोडक्ट के साथ मारुति सुजुकी अपने प्रोडक्ट को लेके, मतलब कंपटीशन जो है वो बरकरार रखने के लिए, अपने प्रोडक्ट को अच्छा से अच्छा सेल मतलब करवाने के लिए वो क्या करते हैं, अपने खुद के जो प्रोडक्ट है उसको उनमें डेवलप लाते हैं। जैसे कि दे हैव लॉन्च लाइक नेक्सा, एक नेक्सा है, मारुति सुजुकी एरिना है। ये सारे लॉन्च करने का कारण ही मैनेजमेंट है, बिकॉज टू अडॉप्ट विथ ऑल दोज चेंजेस। सो hence from here we can say that management is a dynamic function. Then the last one is management is an intangible force. So management is an intangible force, मतलब इनविजिबल, हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन उसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। कैसे फील कर सकते हैं? मान लीजिए कोई कंपनी बहुत अच्छा हो रहा है, उनके जो एम्प्लॉयज है बहुत सेटिस्फाई है, कोई केओस नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो उन ऑर्गेनाइजेशन से हम लोगों को ये पता चल जाएगा, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है, एम्प्लॉयज आर ऑल सेटिस्फाइड, तो इसका मतलब क्या है? उन ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। और कहीं पे अगर बहुत केओस है, कॉन्फ्लिक्ट्स है बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड द ओनर, या जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स है उनके बीच, तो वहां से ये तो पता चल जाएगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इतना इफेक्टिव मैनेजमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं है। तो मैनेजमेंट जो है वो इंटेंजिबल है, और एक ऑर्गेनाइजेशन के जो ग्रोथ है, सक्सेस है, और जो एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं उनके सेटिस्फेक्शन को देखते हुए हम लोग बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन पे है, और जो कि हम लोग उसको फील कर सकते हैं लेकिन उसको देख नहीं सकते, और इसीलिए मैनेजमेंट को एक इंटेंजिबल फोर्स कहा गया है। सो हियर आई हैव डिस्कस्ड द 7 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, और आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया। स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे एट होम, घर पे रहिए, बी सेफ, कीप सोशल डिस्टेंसिंग, बिकॉज COVID-19 इज जस्ट नॉकिंग एट द डोर स्टेप। सो सभी घर पे रहिए, and see you soon in the next video.